Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from the NPCIL. Yes, what you need to do, you need to visit the official website beta npcilcareers.co.in. जब आप यहाँ आएंगे NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इन द करियर सेगमेंट आपको दिखाई देगा करंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट. व्हाट वी आर हैविंग हियर, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2026 थ्रू गेट 24, 25 और 26, right? Once you will click here तो डिटेल एडवर्टीजमेंट will be open. ये जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. स्टार्ट डेट, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 10th of the April, means from the tomorrow, and the last date will be 30th of the April, right? Here registration, as I already told you, starts from the 10th April. And apply online or view details. Once you want to click here apply online, because since it's not started so it will not show you. ठीक है, यहाँ आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाई देगा. क्लिक फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो go for the registration, but apply online का ऑप्शन अभी नहीं आएगा because it will start from the tomorrow, right? Okay, now let's come to the detail advertisement. Since as I told you this advertisement is in Hindi and English both, so whatever you want to see you can see. I am opening it here in the Hindi in English. ठीक है, आप इसको किसी भी मीडियम में जिसमें आप देखना चाहो आप देख सकते हो. As I told you already, फिर एडवर्टीजमेंट दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. Now let's talk about here. First of all, in this recruitment they mention clearly कि गेट 24, 25 और 26 में से किसी भी स्कोर को आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड हियर दे आर हैविंग रिक्रूटमेंट फॉर द ब्रांचेस भी यहाँ मेंशन की गई है. लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 30th अप्रैल. स्टार्ट होगा 10th अप्रैल से, और इन तीनों में से किसी भी गेट के स्कोर को यूज कर सकते हो. ठीक है, here they are having here the post will be ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. ये तो बोल ही रहा है, लेकिन जो पोस्ट की बात की इन्होंने, ठीक है. अच्छा, एक और बात ध्यान रखें बेटा, क्योंकि ये गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे ले रहे हैं तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो ओनली डायरेक्टली गेट स्कोर कार्ड एंड देन दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. देयर इज नो सेपरेट रिटन टेस्ट. ये भी इन्होंने क्लियर बता दिया है. ठीक है, so yes, we will talk about this one. The post name is nothing but executive trainee. In this executive trainee, first of all 1 year training period will be there जहां आपको स्टाइपेंड मिलेगा. ठीक है, after that you will get the post. ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं. Here we are having current vacancies for unreserved categories 126. ठीक है, and reserve category में mention है. तो टोटल जो और करंट वैकेंसीज है वो 314 है, और इसके अलावा बैकलॉग वैकेंसी भी कुछ है. तो ओवरऑल वैकेंसी 330 वैकेंसीज आर अवेलेबल डियर स्टूडेंट्स हियर फॉर द डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स फॉर द डिफरेंट branches as well. Here we can see they are having in mechanical number of vacancies 125, in chemical 40, in electrical 65, in electronics 50, in instrumentation 15, in civil they are having 35. तो ओवरऑल 330 वैकेंसीज, और इसमें भी कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया है. ओके, you can check this one. Yes, they are having some reservations also, so you can check here. The PWD vacancies also they mention here. Okay, now let's talk about here the important dates which I already told you earlier. Form filling will start from the 10th April. Last date 30th April. Payment of application fees भी इसी विंडो में होगी. ठीक है, जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल है. नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹500 इज chargeable only to male applicants belonging to general means unreserved EWS and OBC category students. If you are a general or EWS and OBC category male, then you need to pay application fees of ₹500. Female applicants belonging to SC ST category, PWBD, ex-servicemen, departmental candidates are exempted from the payment of the fees. ठीक है, payment of the application fees, that is clearly mentioned here. Eligibility criteria, what they require BE BTech हो with 60% मार्क्स तो चलेगा. अगर आपके पास 5 year integrated course है, मतलब BE BTech plus ME MTech है तो भी चलेगा, but you should have 60% aggregate marks here. ठीक है, 60% बोल रहा है तो ओवरऑल 60% होना चाहिए मिनिमम. इससे कम 59.99 भी नहीं लेंगे. दे क्लियरली मेंशन हियर. Okay, and yes, applicant must have a valid GATE 24, 25 और 26 score in the same engineering discipline. जिस डोमेन में अप्लाई करना चाहते हैं उसी डोमेन में आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, और साथ के साथ क्या होना चाहिए, ओके, गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए. तो मैकेनिकल यहाँ जो डिसिप्लिन है वो मैकेनिकल प्रोडक्शन, केमिकल में केमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, दे मेंशन हियर। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल में सिविल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन दे आर हैविंग हियर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस यू कैन सी, ठीक है। नाउ ओनली रेगुलर एजुकेशन डिग्रीज ओके ऑब्टेन थ्रू फुल टाइम ऑन कैंपस मोड ही एलिजिबल है, अगर डिस्टेंस लर्निंग है तो एलिजिबल नहीं है। अपर एज लिमिट की बात करें फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स इट इज 26 ईयर्स एंड जो कट ऑफ रखा है मतलब वो 30 मतलब बोल रहे हैं कि बॉर्न ऑन और आफ्टर 30 अप्रैल 2000 ओनली, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिजर्व कैटेगरी में के स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशन है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और बस देयर इज नो एज लिमिट फॉर द एम्प्लॉय सर्विंग इन द एनपीसीआईएल हु अदरवाइज फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। अगर आप ऑलरेडी है डिपार्टमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नाउ हियर दे मेंशन अबाउट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग, बेटा क्लियरली बोल रहे हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इन एनी ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटीज एज फॉलोज, ठीक है। इसमें से पीएचडब्ल्यूआर स्ट्रीम या लाइट वाटर रिएक्टर एलडब्ल्यूआर स्ट्रीम में से कहीं भी आपको ट्रेनिंग होगी, 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, दैट इज क्लियरली मेंशन हियर, ठीक है। और ठीक है, बस यही बोल रहा है। फिर प्लेसमेंट कैन बी अगेन एनीवेयर, जहां भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हो सकता है प्लेसमेंट। स्टाइफंड रहेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, यस द स्टाइफंड विल बी मंथली स्टाइफंड 74,000, वन टाइम बुक अलाउंसेस मिलेगा 30,000, मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन अकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय द एनपीसीआईएल, ठीक है। और वंस यू विल क्लियर द ट्रेनिंग तो उसके बाद जो पोस्ट मिलेगी वो क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग executive trainee will be appointed as a scientific officer C in the group A, बेटा as detailed below। scientific officer C level 10 का रहेगा, पेन मैट्रिक्स 56,100 रहेगा और उसके बाद डीए भी मिलेगा 58% ऑफ द पे मैट्रिक्स, तो ठीक है। मतलब आपको अच्छे खासे इंसेंटिव्स यहाँ मिलने वाले हैं। आफ्टर दैट यस अलाउंसेस विल बी देयर, ठीक है। एचआरए टीए वगैरह रहेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स रहेंगे, इंसेंटिव्स रहेंगे, परफॉर्मेंस बेसिस पे रहेगा और रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहाँ है, जो भी लिखा है वो है ही, ठीक है। बॉन्ड रहेगा, यस यू नीड टू कंसीडर दिस वन आल्सो, प्लीज इसको भी अच्छे से पढ़े। सिलेक्शन प्रोसेस बता ही दिया है मैंने, ठीक है। फॉर द पर्सनल इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी विल बी डन इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर कार्ड ओनली। और उसके बाद क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू एंड देन द फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी देयर। इक्वल वेटेज मिलेगा तीनों ही ईयर के गेट स्कोर कार्ड को। और ये जो बोल रहे हैं, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, विच आई ऑलरेडी शो यू। ये रहा npcil-careers.in, ये मैंने आपको पहले से ही बता दी थी, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 70% वेटेज रहेगा और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी वालों को 60% तो लाने ही होंगे। सो नो वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, मतलब देखो ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर कार्ड दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। और अब जब इंटरव्यू में आ गए उसके बाद एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू ओनली, ठीक है। इंटरव्यू के साथ साथ मेडिकल फिटनेस भी होगा, इन दोनों को मिला के आपको 70% लाने होंगे इफ यू आर फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। बस यही है सारा टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स, बाकी सारी चीजें लिखी है। और ठीक है, वेट लिस्ट विल बी देयर अप टू द सितंबर। और हाँ, इंटरव्यूज कब होंगे, इंटरव्यूज के लिए मेंशन किया है, इंटरव्यूज आर शेड्यूल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम 8th to 19th जून 2026 होगा। कहाँ पे होगा, अनुशक्ति नगर, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब बता रखा है इन्होंने प्लेसेस यहाँ होगा। खैर वो तो आपको इन्फॉर्म कर ही देंगे वो, बट हाँ डेट अभी देख सकते हैं कि 8 से 19 जून के बीच में होने वाला है। वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। और बस दैट्स इट। ये बता रखा है सीजीपी में आपके मार्क्स अगर हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। हाउ टू फिल द फॉर्म ये भी मेंशन किया है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की पहले ही हम बात कर चुके हैं, तो ये सारी डिटेल्स मेंशन है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 10th ऑफ द अप्रैल, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, यू कैन चेक इट, ठीक है। और आप डिटेल्स पढ़ सकते हो अगर आप किसी स्पेसिफिक ओके कैटेगरी से हैं, आप इफ यू वांट टू अवेल द रिजर्वेशन तो अच्छे से पढ़ लेना है, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट व्हिच आई शो यू हियर। यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज तो इन्होंने मेंशन की ही थी, डेट्स वगैरह मेंशन है। अभी अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये स्टार्ट होगा 10th अप्रैल से। ऑलराइट, थैंक यू।